أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ حامیم السجدہ، رکوع نمبر 3. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سورہ حامیم السجدہ، رکوع نمبر 3. یہاں قیامت کے دن کا، روز محشر کا بیان ہے، اور ایک عنوان ہے، بڑا اہم عنوان ہے. وہ یہ ہے کہ ہر گناہ اعلانیہ ہوتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے کہ کوئی گناہ انسان چھپ کے کرتا ہے، کوئی جرم اور کچھ اعلانیہ، تو یہاں اس رکوع کے اندر یہ درس ملے گا کہ ہر گناہ اعلانیہ ہوتا ہے. اگر انسانوں سے چھپ جائے، ماں باپ سے، اساتذہ سے، ساتھیوں سے چھپ جائیں، تو اپنی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتے، اپنے کانوں سے نہیں چھپ سکتے، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی زمین سے، اللہ پاک سے زمین سے چھپ نہیں سکتے. تو اس رکوع کا جو مرکزی عنوان ہے، کوئی جرم، کوئی گناہ وہ چھپ کے نہیں ہوتا، ہر گناہ ہی اعلانیہ ہوتا ہے اور سر عام ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن یحشر، اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ کے دشمن، اعداء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمن، الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی طرف. فہم یوزعون، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی. یہ شرک کرنے والے، یہ سود کھانے والے، یہ بدکار،
یوزعون قسمیں بنا کے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جو ہی اس کے پاس پہنچیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. شاہدہ گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف. یہ شاہدہ اگر اس کے بعد آئے علی، جیسے یہاں ہے علیہم علی، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، کسی کے خلاف. اگر آئے اس کے بعد لہو، شاہدہ لہو، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا. لہو آ جائے تو اس کے حق میں، اور علی آ جائے تو اس کے خلاف گواہی دیں گے ان کے خلاف. سمعہم و ابصارہم، ان کے کان و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کے چمڑے بولیں گے. بما کانوا یعملون، اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، اور کھال چمڑا یہ بولے گا. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو، کیوں تم گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف، علینا ہمارے خلاف. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو کہیں گے انطقنا، ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے، الذی وہ اللہ، انطق کل شیء جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. اللہ پاک نے ایک ساؤنڈ باکس بنایا ہے، ساؤنڈ باکس، بولنے کا آلہ. انسان جب بولتا ہے تو خالی اس کی زبان نہیں اس کام میں چلتی، زبان کے ساتھ اس کا گلا اور حلق، اور گلا اور حلق کی رگیں، وہ رگوں کا اثر ہوتا ہے کہ کسی کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے اور کسی کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے. تو یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس کے اندر زبان، گلا، رگیں اور دانتوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. جب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہ زبان کو فلانی داڑوں پر لگائیں یا دانت پر تو فلانا حرف ادا ہوگا. تو یہ دانت اور داڑیں یہ بھی اس میں شامل ہے، اور ہونٹ بھی شامل ہے. کچھ حرف ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف شفوی، ہونٹ سے ادا ہونے والے. تو ہونٹ اور زبان اور دانت اور گلا، یہ ساری چیزیں مل کے ایک ساؤنڈ باکس بنتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو انسان کی آنکھیں ہیں اور کان اور چمڑا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے. ایک مرتبہ صحابہ کے اندر آپ تشریف فرما تھے تو اچانک آپ مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم نے پوچھا نہیں ہے کہ کس بات سے میں مسکرایا ہوں. صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے پھر وضاحت فرمائی
من मुखातबत अब्द रब्बाहु من मुजादलत अब्द रब्बाहु। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का और बंदे का आपस में गुफ्तगू करना, तो वो गुफ्तगू जो क़यामत के दिन होगी उसे याद करके मुस्कराया हूँ। गुफ्तगू क्या होगी कि जब इंसान के सामने उसका नामा अमाल आएगा तो वो इनकार कर देगा, अल्लाह ताला की गवाही उसका भी इनकार, अल्लाह पाक के फरिश्ते उनकी गवाही का भी इनकार। कफ़ा बिही व बिल मलाइका, अल्लाह ताला के फरिश्तों की गवाही है और नामा अमाल भी है। कहता है नहीं मानता, ऐ अल्लाह तेरा वादा है कि तू किसी पे जुल्म नहीं करता, तो मैं अपने सिवा किसी गवाही को कबूल नहीं करता, अपने सिवा फरिश्तों की गवाही को, और ये नामा अमाल है इसके गवाही को भी कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला फिर उसके मुंह पे मोहर लगा देगी, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मोहर लग जाएगी। जब मोहर लग जाएगी तो फिर उसके हाथ, पाँव, आंखें, कान और चमड़ा बोलेगा, बोल बोल के गवाही देगा। और गवाही क्या देंगे कि तूने हर गुनाह और जुर्म अलल ऐलान किया है, एलानिया हमारे सामने सरेआम तो गुनाह करता था। तो जब गवाही देंगे इंसान के अज़ा, तो उस वक़्त वो कहेगा बोदल लकुन्ना व सुहक़ा, तुम्हारे लिए हलाकत हो, बर्बादी हो। अन कुन्ना कुन तो उनाज़िलो, अन कुन्ना कुन तो उजादिलो, मैं तुम्हारी तरफ से झगड़ा कर रहा था, तुम्हारे हक में झगड़ा कर रहा था, बोल रहा था, अब तुमने खुद ही गवाही दे दी है। तो वो अज़ा इंसान के बोल के कहेंगे कि तूने छुप के तो कोई गुनाह किया ही नहीं, एलानिया किया है, तू सरेआम हमारे सामने गुनाह करता था। तो अजीज भाइयों, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लो कि कोई गुनाह छुप के नहीं होता, गुनाह और जुर्म एलानिया ही होता है, क्योंकि इंसान के जिस्म के अज़ा बोल बोल के कहेंगे कि तू छुप के तो नहीं गुनाह करता था, एलानिया करता था, हर गुनाह हमारे सामने करता था। फिर अल्लाह ताला की ज़मीन बोलेगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ज़मीन बोल के कहेगी हमारे सामने तूने फलाना गुनाह किया है, जुर्म किया है। तो अजीज भाइयों, मेरे लिए भी, आप सब के लिए भी सोचने का मकाम है कि जब तराजू में वज़न करने में हम डंडी मारते हैं तो उस वक़्त कोई नहीं जानता, वो तराजू तो जानता है, अल्लाह की ज़मीन तो जानती, बोल बोल के गवाही देगी। इसलिए ये ज़हन नशीन फरमा लो, और ये अकीदे का मसला है, कोई गुनाह छुप के नहीं होता, हर गुनाह एलानिया होता है, क्योंकि इंसान के अपने अज़ा कहेंगे तो एलानिया गुनाह करता रहा। इसी तरह सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा फरमान है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन खाना काबा के पास में बैठा हुआ था, तो वहाँ 3 आदमी थे, 2 कुरैशी थे और 1 सकफी था, या 2 सकफी थे और 1 कुरैशी था, ये मुझे शक है। कुल 3 थे। कसीरतुन शहम बुतूनहिम, बड़े मोटे मोटे पेट वाले, और
अकल उनकी थोड़ी थी, पेट मोटे मोटे थे, अकल थोड़ी थी, और तीनों ही आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अजीज भाइयों, शरीयत ने ये पेट का बढ़ जाना जगह जगह पे मना किया है, नापसंद किया है। अब वो तीनों आपस में गुफ्तगू करते हैं। एक कहता है, क्या अल्लाह ताला हमारी हर बात सुनता है? ये एक आदमी बात करता है। दूसरा कहता है, अगर आहिस्ता बोले तो नहीं सुनता, अगर बुलंद आवाज से बोले तो फिर अल्लाह पाक सुन लेता है। तीसरा बोला कि अगर अल्लाह ताला बुलंद आवाज को सुनता है तो फिर हर आवाज को सुन लेता है। पहले ने और बात की, दूसरे ने और तीसरे ने और। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसी बात का जिक्र किया गया। आपने फिर इसी आयत करीमा की तिलावत फरमाई जो इस मुकाम पर है, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। तुम इस बात से तो नहीं छुपते थे, अन यशहद अलैकुम, कि गवाही दे तुम्हारे खिलाफ, अला तुम्हारे खिलाफ, समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, न तुम्हारे कान, न तुम्हारी आंखें, न तुम्हारे चमड़े, इनसे तो तुम छुपते ही नहीं थे, और न तुम्हें ये गुमान था कि ये हमारे खिलाफ बोलेंगे। सही अल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4817। इसी सूरह मुबारक की तफसीर में ये हदीस पाक है कि अल्लाह ताला हर बात को सुन लेते हैं। इसी तरह सूरत राद 13वां पारा, सूरत राद, राद का माना होता है गरज, गरज। तो सूरह राद के अंदर रब्बे कायनात ने गरजदार मसाइल बयान फरमाए हैं। जैसा सूरत का नाम है ऐसा ही बयान है, ऐसी ही आयतें हैं। आलिमुल गैब वश्शहादा अल कबीरुल मुतआल सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल। रात को छुप जाए या दिन के उजाले में बात आहिस्ता करो या बुलंद आवाज से बोलो, अल्लाह पाक हर आवाज को सुनते हैं। यही बात यहाँ इरशाद फरमाई। और सूरह यासीन के अंदर भी, वमा कुंतुम तस्ततिरून, और तुम इस बात से तो नहीं छुपते थे, अयशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, कि गवाही दे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे चमड़े। वलाकिन दनंतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, और लेकिन तुमने गुमान किया बेशक अल्लाह ताला नहीं जानता, कसीरा ज्यादा, ज्यादा, मिम्मा तअमलून, उससे जो तुम करते हो। तो अजीज भाइयों, अल्लाह ताला समीउम बसीर है। जो आदमी तौहीद वाला है ना, वो कपड़ा मापने में, वजन करने में, सरिया तोलने में कभी डंडी मार ही नहीं सकता जो तौहीद वाला है, क्योंकि वो समझता है अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। जब इंसान वजन करने में डंडी मारता है तो उसकी तौहीद में खलल आ जाता है, उसके अकीदे में गड़बड़ शुरू हो जाती है। असल तौहीद जब ज़हन में बैठ जाए, हर जुर्म से जान छूट जाती है, हर गुनाह से जान छूट जाती है। अल्लाह ताला के बारे में जो गुमान है, फरमाया वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, यही तुम्हारा गुमान था, यही तुम्हारा गुमान था कि जब मैं किसी को दाल लगा रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, तो कोई नहीं देख रहा, अल्लाह पाक भी नहीं देख रहा। इस गुमान ने तुम्हें मरवा दिया है, इस ख्याल ने तुम्हें हलाक किया है।
वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, यही तुम्हारा गुमान था जो तुमने गुमान किया अपने रब के बारे में। अर्दाकुम, इसी ने तुम्हें हलाक किया है, इस गुमान ने, इस ख्याल ने तुम्हें हलाक किया है। तो अजीज भाइयों, अल्लाह ताला के बारे में जो गुमान है वो अच्छा हो, समीअम बसीरा, कि मैं जलवत में हूँ, मैं खलवत में हूँ, उजाले में, तरीकी में, मेरा कोई कौल फेल अल्लाह पाक से छुपा हुआ नहीं है। ये असल तौहीद है। और अच्छी तरह सुन लो, मुवहिद आदमी कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, अल्लाह पाक जानता है उसके सामने। तो जब ये गुमान इंसान करता है कि अल्लाह ताला मेरे इस फेल कौल से वाकफ नहीं, इस गुमान ने इसको मरवाया है, हलाक किया है। अर्दाकुम, इस ख्याल ने तुम्हें हलाक किया है। फअस्बहतुम मिनल खासिरीन, सो तुम खसारा उठाने वालों में से हो गए। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है और हदीस कुदसी है, मशहूर हदीस मुबारक है, आप भाई सुनते रहते हो। अल्लाह फरमाते हैं, आना इंदा ज़न्ने अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जो ख्याल कर लेता है बंदा तो उसी तरह अल्लाह ताला कर देते हैं जिस तरह बंदे का गुमान होता है। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, इस मरीज को घर ले जाओ, अब इसका इलाज कोई नहीं, तो इस डॉक्टर साहब के पास दीन के इल्म की कमी है। जब ये कहता है इसको घर ले जाओ, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, तो इसके पास दीन के इल्म की कमी है, अकीदे की कमी है। अल्लाह ताला का जो प्यारा फरमान है, आना इंदा ज़न्ने अब्दी, बस गुमान और ख्याल यही करो कि ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल शिफा पाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। अपनी तगोदो जारी रखो, ये कहना कि ला इलाज है, इसको घर ले जाओ, इसका इलाज हो नहीं सकता, ये अकीदे की खराबी है। अल्लाह ताला के बारे में जैसा गुमान करते हैं वैसा ही अल्लाह ताला अपने बंदों से उस तरह का रवैया। और इस तरह एक दूसरी हदीस मुबारक है, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में मशहूर वाक़या है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी का किस्सा सुनाया जो बनी इसराइल से था, सारी जिंदगी कोई नेकी न कर सका, मरते हुए अपने बेटों को जमा कर लिया, मैं तुम्हारा कैसा बाप था, बाप होने के नाते तुम्हारी ज़रूरतें और तुम्हारी खिदमत सही कर सका कि नहीं। बेटे कहते हैं, कुन ता खैरा अबिन, आपने तो बाप होने का हक अदा कर दिया है। कहा अच्छा, फिर जब मर जाऊं मेरी मैयत को जला देने, चक्की में पीस देने और फिर राख को जला के उड़ा देना, हवाओं में, फिजाओं में, पहाड़ों में, पानियों में उड़ा देना। इसी तरह बेटों ने किया। अल्लाह पाक ने सारे अज़ाब हुक्म करके जमा करके एक सवाल कर दिया, लिमा फालता आज़ा, ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है। तो क्या कहता है, मिन खशियत का, अल्लाह तेरा डर आ गया, बस डर आ गया ना, ऐसा डर आया। कहता है कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे पकड़ लिया ना तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि इसकी मिसाल कोई नहीं, ऐसा मुझे अजाब मिलेगा कि मेरे अजाब की मिसाल कोई नहीं। डर आ गया। जब डर आ गया ना तो अल्लाह ताला ने फिर उसके गुमान के मुताबिक ही फैसला फरमा के उसे माफ़ कर दिया, माफ़ करके अपनी जन्नत का वारिस बना दिया। फ़ग़फ़र लहू। तो अज़ीज़ भाइयों, रब्बे कायनात के बारे में अपना गुमान हमेशा मुस्बत कर ले। वो मेरा रब है, मेरा है, अपना है, मैं उसका अपना बंदा हूँ, मेरे हर फेल से, कौल से वाकिफ़ है। रात की तारीकी, दिन का उजाला,
रब कायनात के लिए बराबर है। इसलिए जो भी इंसान जुर्म करता है, गुनाह करता है, कोई गुनाह खुफिया नहीं होता, छुप के नहीं होता, हर गुनाह एलानिया होता है, आंखों से, कानों से, और अल्लाह की जमीन से छुप के कहाँ जाएगा। ये दरस है इस रुकू के अंदर के हर गुनाह एलानिया होता है। इंसान के कान, आंखें और चमड़ा बोल बोल के कहेगा कि तू सरेआम गुनाह करता था, हमसे छुपता ही नहीं था, सरेआम गुनाह करता था। फासबहतुम मिनल खासिरीन, पस तुम हो गए खसारा पाने वालों से। अजीज भाइयों, एक लफ्ज़ है जो आपने अक्सर सुना है, सब्र का फल मीठा। ये तो आपने सुना है, ये बात हक है, सब्र का फल मीठा, लेकिन ये सिर्फ दुनिया के अंदर है, दुनिया के अंदर। आखिरत में सब्र करो ना करो बराबर है। दुनिया में ये ठीक है कि सब्र का फल मीठा, तो अब यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया कि आखिरत में जहन्नम में सब्र करो ना करो बराबर है। सब्र का फल मीठा है सिर्फ दुनिया में। फरमाया फ़इन यस्बिरू फन्नारु मथवल लहुम, बस अगर वो सब्र करें तो आग उनके लिए ठिकाना है। सब्र करें आग ठिकाना है, सब्र ना करें फिर भी आग ठिकाना है। तो सब्र का फल मीठा जिंदगी में, दुनिया में, आखिरत में सब्र का कोई फायदा नहीं। आवाज़ें निकालो, वावेला करो, बेसब्री करो या सब्र करो बराबर है, कोई फर्क नहीं। फन्नारु मस्वल लहुम, चुनाचे अल्लाह ताला ने जहन्नमी लोगों का बयान किया कि दोनों तरीके अपनाएंगे। कभी तो सब्र करके देखेंगे कि अजाब में कोई तखफीफ हो जाए, और कभी वावेला शोर करके, और शोर भी गधों की तरह। गधे के मुतल्लक कई दफ़ा अर्ज़ किया है, ज़रूरत हो नहीं बोलता, ज़रूरत ना हो तो बोलता है, ये गधे की निशानी है। तो अज़ीज़ भाइयों, गधे की बोली से मना किया गया है। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, इसलिए जब ज़रूरत हो तो बोला करो, बगैर ज़रूरत के मत बोला करो। कई आदमी बगैर ज़रूरत के बोलते हैं और बोलते चले जाते हैं, इतना बोलते हैं कि साथ वाले तंग पड़ जाते हैं। तो जहन्नम के अंदर सब्र करो ना करो बराबर है। फ़इन यस्बिरू फन्नारु मथवल लहुम, अगर सब्र करें तो जहन्नम उनका ठिकाना है, ना करें फिर भी जहन्नम ठिकाना है। व इन यस्तातिबू, और अगर वो उज़र पेश करें, माफ़ी की दरख्वास्त करें, फमा हुम मिनल मुअतबीन, तो वो माफ़ किए गए लोगों से नहीं है। व क़य्यज़ना लहुम क़ुरना, और हमने मुकर्रर किए उनके लिए साथी, बुरे साथी। साथी बुरे वो क्या करते हैं, फ़ज़य्यनू लहुम, बस वो मुज़य्यन करते हैं उनके लिए, मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है। चोरों के साथी भी चोर, बदकारों के साथी भी बदकार। फिर वो अपना जुर्म अपने साथियों में बयान करता है, चोरी का, बदकारी का, तो उसके साथी भी वैसे ही होते हैं ना। वो कहते हैं वाह वाह खूब तूने कमाल किया है। तो ये जुमला कि फलाना साथी तो, फलाना इंसान तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथी बुरे हैं, ये जुमला ही गलत है, जुमला ही गलत है। जैसा इंसान होता है दोस्त भी वैसा ही होते हैं। फलाना बड़ा अच्छा है, दोस्त उसके अच्छे नहीं है, ये जुमला गलत है। अल्लाह फरमाते हैं जैसा बंदा वैसे ही उसके दोस्त। वहक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, और साबित हो गई उन पर बात, फ़ी उममिन, उन ग्रोहों में, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्न वल इंस, जो गुज़र गए उनसे पहले जिन्नों से और इंसानों से। इन्नहुम कानू ख़ासिरीन, बेशक वो खसारा उठाने वाले थे। अल्लाह ताला हम सब को
قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔